Good morning students, how are you? Today we will do exercise 7.4. Our first question is, write the shaded portion as the fraction. So, इनको fraction में लिखेंगे. What is this? How many portions are shaded? 1, 2, 3. And total portions कितने हैं? 8. So its fraction is 3 by 8. इसमें कितने shaded portion है? How many shaded portion? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the fraction? 6 by 8. How many fractions are shaded here? 1, 2, 3, 4. Total fractions 8. So 4 upon 8. Shaded portion is only 1 and total portions are 8. The fraction is 1 by 8. In this one, how many parts are shaded? 8 parts are shaded out of 9. In this one, 1, 2, 3, 4. 4 parts are shaded out of 9. 1, 2, 3. In this one, 3 parts are shaded out of 9. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts are shaded out of 9. Now we have to arrange them in ascending order. So here the denominator is equal in all the cases. सभी में denominator क्या है? Equal है. So we have to compare just numerators only. So by comparing the numerator, 1 by 8 is the smallest one. Then 3 by 8. Then 4 by 8, then 6 by 8. Clear? Similarly here, 3 by 9, 4 by 9, 6 by 9, and then 8 by 9. Clear? ये हमने लिखे इनको ascending order में. Similarly, you have to write these in the descending also. आपको descending order में भी इसे लिखना है. Now show that 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6, 6 by 6 on the number line. एक number line represent करनी है. Where you have to mark these fractions on the number line. This number lies between 0 to 1. This is also in between 0 and 1. This number lies between 1 to 2. It is only single one. So 0. There will be 6 parts between 0 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 0 to 1 के बीच में भी हमने 6 पोर्शन किए हैं और 1 to 2 के बीच में भी हमने 6 पोर्शन किए हैं. Now each and every part will be 1 by 6, 4 by 6, 5 by 6. And this will be equal to 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, and then so on. 11 by 6, 12 by 6. अब हमें कौन-कौन से नंबर रिप्रेजेंट करने हैं? Which number we are going to represent here? Is 2 by 6. हमें 2 by 6 को रिप्रेजेंट करना है. Yes. 4 by 6. This one. 8 by 6, this one, and 6 by 6, this one. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा. ये नंबर है, this one है, 1 हो गया, and this one 8 by 6 on the number line. Now use the appropriate sign between the fraction. अब कुछ fractions हमारे पास given है, हमें इन fractions के बीच में appropriate sign use करना है. किस तरह का sign आएगा? Either maybe less than, greater than, or equal to का sign आएगा. Now दोनों का डिनोमिनेटर इज इक्वल. बोथ डिनोमिनेटर आर इक्वल्स 6 and 6. तो इनके नोमिनेटर को बस चेक करना है. जो बड़ा है तो उसके सामने लार्जर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. तो 5 इज ग्रेटर देन 2, सो वी यूज दिस सिंबल हियर. सो 5 by 6 इज ग्रेटर देन 2 by 6. अब इसका न्यूमरेटर क्या बना? इसका डिनोमिनेटर कुछ दे नहीं रखा है. तो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज ऑलवेज 0. सो हम यहां पर क्या करेंगे?
किसे 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर अब इक्वल है। अब 3 इज लार्जर देन 0, सो ग्रेटर देन का सिंबल we will use here the symbol of greater than. Now 6 is greater than 1, so we use the less than symbol. 1/6 is less than 6/6. इसका तो आपको पता ही होगा, इस ग्रेटर देन लेस देन में जो बड़ी नंबर होगी उसकी तरफ ओपन होगा ये, क्लियर, और जो छोटा नंबर होगा उसकी तरफ ये क्लोज होगा। नाउ 8/6 is greater than 5/6. So we can use appropriate sign in the question number second also. Compare the fraction and put the appropriate sign. जैसा हमने अभी भी किया था इसी तरह से इसे करेंगे सिमिलरली, बट अगर यदि इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें वो बनाना होगा। हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल? बाय टेकिंग एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे देन डिनोमिनेटर इक्वल होगा। इस केस में कितना है? 6 और 6 दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, सो नो नीड टू टेक एलसीएम। सो यहां पर क्या होगा? व्हिच इज ग्रेटर देन, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6, सिंपल। नाउ here you have to take LCM of 7 and 4. LCM of 7 and 4 is equal to 28. अब इनका LCM कितना आ गया? 28. so 28 अगर LCM आया है, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 1 जा 7। अब इस बॉक्स में क्या आएगा? 7 is larger than 4, so we use here 1/7 is less than 1/4. Here the denominators are equal, so it is easy to put the sign. It is very easy to put the sign. In this case, we have to take the LCM. What is the LCM? Here the LCM is 35. So 5 7 are 35. 7 पे 7 3 are 21. Clear? 7 3 are 21. 7 5 are 35, 5 3 are 15. Now which is greater than? 21 is greater than 15. So यहाँ हम सिंबल आएंगे greater than का, clear? So in the question number 3, mark 5 more such pair and put appropriate sign. आप इसी तरह से कोई भी 5 numbers आप लेंगे by using self और उनके बीच में less than, greater than और equal to वाला sign आप लगाएंगे, clear? Now come to question number 4. In the question number 4, look at this figure, this one. And then write the appropriate sign between each pairs of question number 4. Now 1/6 and 1/3. 1/6 is greater than 1/3, 1/6 is less than 1/3, 1/6 is equal to 1/3. क्या साइन आएगा? इसको इस फिगर में देखेंगे, फिर यहां अटेम्प्ट करेंगे। Now look at here. 1/3 is just the 1/3 portion of the number line, and another side 1/6 is the 1/6 portion of this number line. The line is same. अगर हम इस लाइन को मेजर करें, so अगर हम इस लाइन को कंपेयर करते हैं इन दोनों लाइनों को, इसमें 1/3 यहां आ रहा है, इसमें 1/6 यहां आ रहा है, तो हमने देखा कि 1/3 जो है वो राइट साइड में आ रहा है। एक लाइन पर अगर इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/3 ऑन द राइट साइड, तो 1/3 क्या रहेगा? इससे बड़ा रहेगा, इज द लार्जर देन 1/6। तो हमारे पास सिंबल क्या जाएगा? 1/3 1/6 इज लेस देन 1/3। सिमिलरली आपको सारे कंपेयर करने हैं। सो 3/4 पोर्शन कहां पर है? 3/4 दिस वन, ये हमारा 3/4 हो गया पोर्शन। एंड ऑन अदर साइड 2/6, ये 2/6 है। तो अब ये राइट साइड में कौन पड़ेगा? 3/4। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6, क्लियर? सिमिलरली हियर 2/3 एंड 2/4। 2/3 कहां पर है? इसमें देखिए 2/3 यहां पर है, यस दिस वन 2/3, एंड 2/4 दिस वन।
अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो राइट साइड में कौन सा पोर्शन आएगा 2/3, सो 2/3 इज द लार्जर। बट एक ये ध्यान रखना है कि सभी के फ्रैक्शंस का जो पोर्शन है वो आपको सही और क्लियरली बनाना है, सबकी इक्वल डिस्टेंस होगी ये, क्लियर। नाउ 6/6 एंड 3/3, 6/6 कहां है, दिस वन, 3/3 कहां है, दिस वन, दोनों एक ही लाइन पर है तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। नाउ 5/6 और 5/5, 5/6 this one and 5/5 this one, so which is greater than, which is larger, 5/6, 5 is the larger one than 5/6, clear. So this is question number 4. Now come to question number 5. In the question number 5 you have to represent the sign less than, greater than or equal to in each and every boxes, clear. अब इसको बॉक्स में ये साइन, कौन सा साइन आएगा, इसके लिए शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड है हमारे पास कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5, 2 1 2, तो अब क्या साइन आएगा, 5 इज ग्रेटर देन, सो ये नंबर 1/2 इज लार्जर। सिमिलरली इसमें भी आप एलसीएम वाला मेथड तो है ही, हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो कई बार क्या होता है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एलसीएम यूज करते हैं। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इजी है, 6 2 12 और 4 3 12। अब 12 इज इक्वल टू 12, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन। सिंपली हियर 3 3 9, 5 2 10, so which is greater than, which is larger, 10, so 2/3 is larger. Similarly here 8 3 24, 4 2 8, so 24 is greater than 8, clear. 5 3 15 और 5 6 30, so 30 is greater than 15, यहां पर क्या आएगा सिंबल, 3/5 is less than 6/5, here the denominator is equal। अब डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल था तो इसकी जरूरत नहीं थी हमें, नो नीड ऑफ वेरीफाइंग दिस वन, क्लियर। सो 7/7 ऑफ 3 में से कौन लार्जर है, 7, सो सिंपल। इसमें 8 और इधर भी 4 2 8, सो बोथ आर इक्वल। हियर 5 6 30, 4 10 40, so which is greater than, which is larger, 40 is larger। 8 3 24, 4 7 28, so which is larger, 28 is larger। Now here 6 5 30, 10 3 30, so both are equal। 25 1 105, 17 5 105, so both are equal। So cross multiplication can also be used here to verify which number is larger or which number is question number 6। In the question number 6 the following fraction represent just 3 different numbers, separate them into their 3 groups। So 1/12, 2/12 is equal to what, इसको अगर मिनिमाइज करेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, 2 फैक्टर दोनों में है, सो 2 1 2, 2 6 12, 1/6। इसे मिनिमाइज करो, 3 1 3, 3 5 15, इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, इसमें 2 है, यस, सो 2 4 8 एंड 25 2 50। नेक्स्ट वन, इसे मिनिमाइज कीजिए, ये 4 से फैक्टर हो रहे हैं, यस, तो 4 4 16 एंड 25 4 100, इसमें 0 से 0 कैंसिल, व्हाट वी गेट 1/6। इन द नेक्स्ट वन, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या है इनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बना हमारे पास होगा 15, 15 1 15, 15 5 75। Now 12 1 12, 12 5 60, इनका HCF है 12। इसमें इस केस में 16 6 19 6,
इसमें what is the common factor? 3 is the common factor. So HCF is 3. 3 4s are 12 and 25 3s are 75. इन दोनों में HCF है 12. The common factor is 12. So 12 ones are 12 and 12 6 are 72. इसमें 3 कॉमन है तो 3 ones are 3, 3 6 are 18. इजी है, सबको बस मिनिमाइज करना है आपको और उसके बाद इनका बस एक ग्रुप बना देंगे कौन कौन सा किस ग्रुप में लाई करता है. इट इज ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म. सो यहां पर 1/6 के इक्वल कौन कौन से हैं? जो 1/6 के इक्वल है वो है ए और ई एच जे एंड के. They all gives the value of 1/6. They all are equal to 1/6. Then 1/5 के इक्वल कौन कौन है? 1/5 में है बी, पार्ट बी, पार्ट ई, 1/5 सॉरी नॉट पार्ट ई, 1/5 है पार्ट एफ, पार्ट जी, that's it. Now 4/25. 4/25 के इक्वल कौन कौन से पार्ट है? पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट आई और पार्ट एल. क्लियर? तो मतलब इस तरह से हमको अलग अलग आंसर के हिसाब से हमने तीनों का ग्रुप बना दिया. 3 डिफरेंट नंबर्स में इनको रिप्रेजेंट किया है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. ये ट्रू है या फॉल्स है? इज 5/9 इक्वल टू 4/5? अगर ट्रू है या फॉल्स है जो भी है वो कैसे है एक्सप्लेन कीजिए. सो इनका एलसीएम कितना आएगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं. सो एलसीएम हमारे पास कितना आया? 45. 5 5s are 25 and 9 4s are 36. So 36 is greater than 25. So is this equal? So not equal. Clear? Is 9/16 equals to 5/9? इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आएगा? 16 और 9 में 16 9s are 144 and 9 9s are 81. 16 5s are 80. So 9/16 is greater than this. So they are not equal. Clear? In the next one, their LCM is 20. So 5 4s are 24, 4s are 16 is equal to 16. So yes, they are equal. Clear? Now then in the next one, is 1/15 equals to 4/30? तो इनमें भी एलसीएम ले लीजिए. Here LCM is 30, 15 2s are 30, 31s are 34. So which is greater than? 4 is greater than. So they are not equal again. So इसमें सिंपल आंसर भी बता सकते थे बट आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है तो ये इसको कैलकुलेट करना नेसेसरी है. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. In the question number 8, Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. So Ela ने कितना बुक्स रीड किया? Ela read the fraction of book कितना फ्रैक्शन रीड किया? 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस. सो 100 पेजेस में से उसने 25 पेजेस रीड किए. सो इट बिकम्स 25 upon 100. So on minimizing this fraction we get 1/4. 25 ones are 25, 25 fours are 100. Now Lalita read the same book. So Lalita read the fraction of the book is equal to 2/5.
अब 1/4 बड़ा है या 2/5, विच इज लार्जर, 1/4 और 2/5? Let us compare 1/4 and 2/5. Their LCM is equal to 20. 5 ones are 5, 4 twos are 8. So 8 is larger than 5. So हम कहेंगे as 5 2/5 is greater than 1/4. So Ela read less. So who read less? Ela read less. Similarly here, so Rafiq exercise for 3/6 of an hour and Rohit exercise for 3/4 of an hour. दोनों फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन है, बोथ आर ऑलरेडी इन द फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन में है तो हम सिंपली पहले कंपेयर कर सकते हैं. एज 3/6 पहले कंपेयर कीजिए 3/4. इन दोनों के कंपैरिजन के लिए एलसीएम लेंगे. 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12. सो एलसीएम इज 12. तो 6 2s are 12, 2 3s are 6, 4 3s are 12, 3 3s are 9. So 9 is greater than 6. अब हम लिखेंगे as 3/4 is greater than 3/6. 3/4 larger है. So Rohit exercise more for the larger time. In the question number 10, in a class A of 25 students, 20 passed with 60%. So what fraction of the class A? Fraction of class A passed with 60% or more. So passed with 60% और more कितने बचे हैं? 20. So इनका फ्रैक्शन कितना हो गया? 20 अपॉन टोटल कितना है? 25. So फ्रैक्शन मिनिमाइज होगा 5. 5 4s are 20, 5 5s are 25. The fraction of the class B passed with 60% or more. Class B passed with or more. So क्लास बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30. और जो पास हुए हैं 60% से ज्यादा हुए हैं 24. सो इनको मिनिमाइज करेंगे. इनका HCF है 6. तो 6 4s are 24, 6 5s are 30. क्लियर? अब दोनों पोर्शन इक्वल है. यस, हम सिंपली सीधा ही लिख सकते हैं एज 4/5 is equal to 4/5. So both the result of the both class is same. So the result of both class is same and it is equal to 4/5. Okay.